Children, during the last class, we did holy places, page number 50-51, and quiz yourself to page 52. Right? Children, I hope you are learning hand in hand. Whatever work we are doing, the very day or the very week, the same week, you are learning your pages, whatever we are doing, the topics, whatever we are covering. Okay? If you are not, kindly do it. Because as soon as I'll do, half of a syllabus, I'll start taking the test. Or I can take test anytime. So please be prepared. Children, today we are going to do page 53, that is classics and popular. Classics and popular, this topic, it is based on the books. Actually, the authors. Author, what do you mean by author? The person who has written the book, right? So answer the following questions on some famous authors and their creations. Author की creation क्या होती है? Author की creation उसकी book है, right? So the first one is, for which book did Jhumpa Lahiri win the Pulitzer Prize in 2000? Jhumpa Lahiri को बच्चे Pulitzer Prize मिला था 2000 में किस book के लिए? The name of the book is Interpreter of Maldives. Okay, so children, now there are many, we are talking about many books and many authors just on page 53 only. So I want you all to discover about these authors. So बेटा आपका काम क्या है, जितने authors का नाम या जितनी books का नाम है उसको गूगल आउट करिए, उसके बारे में और information collect करिए. ओके, आई विल आस्क कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है. कहीं एक रफ में यू हैव टू नोट इट डाउन, वट एवर इन्फॉर्मेशन यू आर कलेक्टिंग अबाउट द ऑथर एंड देयर क्रिएशंस. राइट, डिफरेंट ऑथर्स, देयर फेमस ऑथर्स आर देयर एंड यू हैव टू राइट अबाउट, नोट डाउन अबाउट देयर क्रिएशंस एज वेल. ओके, कौन किस तरीके का ऑथर है, कोई क्रिएटिव है, कोई रियलिस्टिक है, वो फिक्शंस लिखता है. So you have to note it down. थोड़ा सा notes बनाओ, discover करो, learn by doing. Okay. So now let's move ahead. The second one is, which popular girl detective solves mysteries? इसी से पता चल जाता है. Girl detective जो mysteries solve करती थी अपनी friends की help से, Nancy Drew. Who was she? She was Nancy Drew. एंड उसके फ्रेंड्स का क्या नाम था? बेस मैवन एंड जॉर्ज फेन. ओके. थर्ड, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पॉपुलर सीरीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स? इसमें लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पे बेस्ड मूवी भी बनी है. इस सीरीज जो है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, इसका ऑथर कौन है? J.R.R. टॉलकिन. नंबर 4, हु रोट द बुकर प्राइज विनिंग नॉवल? यानी इस नॉवल को बुकर प्राइज मिला था. And what is the name of the novel? The God of Small Things. And who wrote it? Arundhati Roy. Okay. Next, number 5. Who is the author of the famous book The Girl with the Dragon Tattoo? Girl with the Dragon Tattoo, name itself tells there is a girl जिसने dragon tattoo करवाया था. Okay. So who is the author of this book? Stieg Larsson. Number 6. Who wrote the book A House from Mr. Biswas? The name of the book is A House for Mr. Biswas. And who wrote it? V.S. Naipaul. Number 7. Which book by Marcus Zuckerberg is set in Germany during World War II and is about Liesl Meminger, a girl who steals books and share them with her friends, with her neighbors. So एक मार्कस जुजक की एक बुक है जो जर्मनी में सेट हुई थी, स्टार्ट करी गई थी, लॉन्च करी गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे. और ये बुक एक लिसल मेमिंगर गर्ल के बारे में है जो बुक्स चोरी करती थी और अपने नेबर्स के साथ शेयर करती थी.
So the name of the book is The Book Thief. The Book Thief, क्योंकि वो बुक चुराती थी, तो नेम ऑफ द बुक इज द बुक थीफ. उसी पे बेस्ड है ये स्टोरी. ओके. Match these authors with their books given in the help box by writing the correct answer options in the boxes. Children, boxes यहाँ पे given नहीं है. So but what you'll do कि उसी के नीचे you'll write the answers as I have written. Okay. So number 1, Amitav Ghosh. So Amitav Ghosh wrote Sea of Poppies. So आप Sea of Poppies को भी गूगल करिएगा. Find it out. Discover more about this book. And who is the author of Sea of Poppies? Amitav Ghosh. Children, kindly learn the spellings and names of the authors, names of the books properly. Okay? And children, since it is the name of the book, so S will be in capital, C, S will be in capital, and Poppies, P will be in capital. So be careful. Number 2, Sue Townsend. Sue Townsend wrote The Secret Diary of Adrian Mole, aged 13, 3/4. Okay, so this is the name of the book. Number 3, C.S. Lewis wrote The Chronicles of Narnia. Number 4, Dan Brown. Dan Brown wrote The Da Vinci Code. Number 5, Sir Arthur Conan Doyle wrote The Hound of the Baskervilles. Okay. Then the last, Devdutt Patnaik, he wrote Jaya. Okay. So you have to, children, I'm telling you again, you have to find out about these authors and about their creations. Now children, let's read this tidbits. If you think that the Hardy Boys series is actually written by a writer named Franklin W. Dixon, then think again. ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हार्डी बॉयज सीरीज़ में तो राइटर का नाम फ्रैंकलिन डब्ल्यू डिक्सन ही है. पर वो बोल रहे हैं कि नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये फ्रैंकलिन डब्ल्यू डिक्सन ने लिखी है, सो यू आर रॉन्ग. देन थिंक अगेन. फिर से सोचो. ऐसा क्यों बोला? बिकॉज द हार्डी बॉयज एज वेल एज द नैन्सी ड्रू बुक्स, ये दोनों जो हार्डी बॉयज सीरीज़ है और नैन्सी ड्रू बुक्स हैं, ये क्रिएशंस हैं एक अमेरिकन पब्लिशर एडवर्ड स्ट्रेटमे के. एक अमेरिकन पब्लिशर है एडवर्ड स्ट्रेटमे. ही इज़ नॉट एन ऑथर, ही इज़ ओनली अ पब्लिशर. और वो क्या करते हैं? वो घोस्ट राइटर्स को एम्प्लॉय करते हैं. ये दोनों सीरीज़ लिखने के लिए उन्होंने घोस्ट राइटर्स को एम्प्लॉय किया था. हु एम्प्लॉयड a number of ghost writers to create the 2 series. ये दोनों सीरीज़ लिखने के लिए अमेरिकन पब्लिशर एडवर्ड स्ट्रेटमे ने कई सारे घोस्ट राइटर्स को एम्प्लॉय किया था और लिखवाई थी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय घोस्ट राइटर्स? हु आर घोस्ट राइटर्स? आर दे स्कैरी? घोस्ट मतलब तो भूत. क्या घोस्ट राइटर्स मतलब भूत वाले? भूत? नो चिल्ड्रन, घोस्ट राइटर्स मीन्स आप ऐसे एम्प्लॉयज़, एक लिटरेचर लिखने वाले या कुछ भी स्टोरी एंड ऑल फिक्शंस लिखने वाले, आप राइटर्स को एम्प्लॉय करते हो लिखने के लिए, उनको जॉब देते हो लिखने के लिए, बट उनका नाम पब्लिश नहीं होता. वो राइटर नहीं होते, वो अपनी स्टोरीज़ किसी और के नाम से पब्लिश करवाते हैं. दैट मीन्स उनको हायर किया जिसने, वो अपने नाम से उनकी लिखी हुई स्टोरीज़ और बुक्स को, सीरीज़ को पब्लिश करते हैं. राइट. वो जो लिख रहा है वो घोस्ट है, यानी उसको कोई नहीं जानता. वो घोस्ट राइटर्स मीन्स जो दूसरों के लिए, जो जिनको बाकी लोग हायर करते हैं स्टोरीज़ या बुक्स, सीरीज़ ऑफ बुक्स लिखने के लिए, बट उनका नाम कहीं भी नहीं आता है. फाइन. So it's their job, they are doing their job and they do it willingly for money. Okay. So Hardy Boys series and Nancy Drew books, ये दोनों सीरीज़ लिखने के लिए अमेरिकन पब्लिशर एडवर्ड स्ट्रेटमैन ने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय किया था. ओके. ये बुक्स, ये सीरीज़ लिखने के लिए. एंड ऐसे राइटर्स को क्या बोलते हैं?
ghost writers. Okay, I hope it is clear. Now let's move ahead to page 54. Children, page 54 is bridge the gap. From log bridges to structures of steel and concrete bridges are some of the world's best engineering marvels. Read about some famous bridges here. बेटा पहले कैसे ब्रिजेस होते थे? लकड़ी के ब्रिज होते थे, कई बार वो टूट भी जाते थे. लकड़ी के ब्रिज से वो धीरे धीरे आगे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, स्टील और के ब्रिज बनते गए, पत्थर गिट्टी और गिट्टी विट्टी यूज़ करके कंक्रीट इज़ व्हाट, गिट्टी ना, गिट्टी और इन सब के सॉलिड ब्रिजेस बने, फिर और भी ब्रिज बने. सो कई सारे जो इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं, यानी बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं, बहुत टेक्नोलॉजी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो ब्रिज बने हैं, उनमें से कुछ फेमस ब्रिज के बारे में वील टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर. ओके, सो नंबर 1 इज completed in 1883, the Brooklyn Bridge. It's a very famous bridge, well-known bridge. Completed in 1883. ये bridge कब बन के तैयार हुआ था? 1883 में. And the name of the bridge is the Brooklyn Bridge. This bridge connects Brooklyn with Manhattan through the East River. जो East River है उसके through Brooklyn और Manhattan को connect करता है ये bridge. So for a long time it was the longest suspension bridge in the world and has become an iconic landmark of New York City. ये bridge कहाँ है? न्यू यॉर्क सिटी पे, और ये वहाँ का बहुत काफ़ी बड़ा, it was the longest suspension bridge in the world. काफ़ी समय तक ये सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज था पूरे वर्ल्ड का. फिर इससे बड़ा भी बना, but for a long time it was the longest suspension bridge. Okay, the bridge had a wide pedestrian walkway open to cyclists and people on foot. तो ब्रिज में साइड में एक पेडेस्ट्रियन वॉकअवे भी है, जो लोग साइकिल चला रहे होते हैं या जो पैदल चल रहे होते हैं उनके लिए. ओके, now the next is the world's longest bridge over water. वाटर, पानी के ऊपर सबसे बड़ा ब्रिज वर्ल्ड का कौन सा है? इज़ दी किंगडाओ हाइवन ब्रिज इन चाइना. कहाँ का ब्रिज है ये? कहाँ है ये ब्रिज? चाइना में. एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्रिज? किंगडाओ हाइवन ब्रिज. इट वाज ओपनड इन 2007. ये ब्रिज कब स्टार्ट हुआ यूज़ होना? 2007 में. एंड हाउ लॉन्ग इज़ द ब्रिज? द ब्रिज इज़ 42.4 किलोमीटर्स लॉन्ग. कितना ज़्यादा लंबा ब्रिज है. जस्ट इमेजिन 42.4 किलोमीटर्स. एंड द ब्रिज हैज़ 6 lanes टू सर्व एन एस्टिमेटेड 30,000 कार्स ईच डे. और ये ब्रिज इतना चौड़ा है बेटा, इसमें कितनी लेन्स हैं? 6 lanes. आने जाने के लिए 6 lanes. और एवरी डे एक जो एस्टिमेटेड एक डेटा कलेक्शन है, जो एस्टिमेशन एक नॉर्मल अंदाजे से बोलेंगे तो 30,000 कार्स एवरी डे उस ब्रिज के ऊपर से आती जाती हैं, क्रॉस करती हैं उसको. राइट, नेक्स्ट इज टार ब्रिज. टार ब्रिज इज अ मूवेबल सस्पेंशन ब्रिज. हिलता हुआ है, वो हिलता भी है. सस्पेंशन ब्रिज है, मूवेबल है. ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ इन लंदन. किस रिवर के ऊपर? रिवर थेम्स के ऊपर. इट इज़ नेक्स्ट टू द टावर ऑफ लंदन. ये टावर ऑफ लंदन के जस्ट बगल में है. एंड हैज़ बीन एन आइकॉनिक सिंबल ऑफ लंदन फॉर डिकेड्स. और ये लंदन का बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक सिंबल रहा है डिकेड्स तक. डिकेड मीन्स 10 years एंड ये डिकेड्स की बात कर रहा है, यानी कई दसियों साल तक. राइट, सो डिकेड्स मीन्स बहुत सारे दसियों साल तक ये आइकॉनिक सिंबल रहा है लंदन का. ओके Children, it took 8 years for the construction to be completed and was done by the year 1894. इस ब्रिज को बनाने में बेटा, टार ब्रिज को बनाने में 8 years लगे, और ये कंप्लीट होके रेडी कब हुआ था? 1894 में. फाइन. नेक्स्ट,
द बांद्रा वर्ली सी लिंक ऑफिशियली कॉल्ड द राजीव गांधी सी लिंक. बेटा बांद्रा वर्ली सी लिंक ही बोलते हैं, बट ऑफिशियली इसका नाम है राजीव गांधी सी लिंक. कोई इसको यूजुअली राजीव गांधी सी लिंक नहीं बोलता, सब बांद्रा वर्ली सी लिंक ही बोलते हैं, क्योंकि ये बांद्रा से वर्ली को कनेक्ट किया हुआ है इस ब्रिज ने. ओके, ऑफिशियली इस ब्रिज का नाम है राजीव गांधी सी लिंक. ये मुंबई इंडिया में है, मुंबई में है इंडिया में, एंड इट वॉज इनॉग्रेटेड इन जून 2009, linking the main island of Mumbai to its suburbs. So मुंबई का जो मेन आइलैंड है उसको उसके सबर्ब से लिंक करता हुआ है ये ब्रिज. बाकी सबर्ब बाकी का एरिया. एंड दिस ब्रिज इज़ इंडियाज़ फर्स्ट 8-lane फ्री वे ओवर द ओपन सी. ओपन सी के ऊपर 8 लेन का इंडिया का ये पहला ब्रिज है. इंडिया का फर्स्ट 8-lane फ्री वे ओवर द ओपन सी ब्रिज है आपका बांद्रा वर्ली सी लिंक. राइट. सो ये ब्रिज किस लिए बनाया गया था कि जो ट्रैफिक है वो कंट्रोल में आए और उनका ट्रैवल टाइम जो है कम्यूटर्स का जो ट्रैवल कर रहे हैं उनका ट्रैवल टाइम कट डाउन करने के लिए, उनका टाइम सेव करने के लिए. राइट. क्योंकि अगर वो रोड से होके जाएंगे तो बहुत लंबा रास्ता है. सी के ऊपर एक ब्रिज बना दिया तो उनका ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा बच गया. राइट. सो द ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन एंड टू हेल्प कम्यूटर्स कट डाउन देयर ट्रैवल टाइम. फाइन. टर्न टू द नेक्स्ट पेज. Completed in 1998, the Pearl Bridge in Japan is the world's longest cable suspension bridge. The bridge connects the island of Awaji to Honshu. Before the bridge was built, the only way of commuting was the passenger ferry, which would often experience dangerous storms. Ferry क्या होती है? Passenger ferry means जो ships होती हैं जिसमें आप जाते हो. Right? सो फेरी के थ्रू ही कम्यूट करना एक लौता तरीका था, एक ओनली वे था, और वो बहुत ही डेंजरस था क्योंकि कई बार बहुत भयानक स्टॉर्म आता था और शिप जो फेरी थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी. राइट. तो इसीलिए ये ब्रिज बनाया गया. 1998 में ये कंप्लीट हुआ था ब्रिज. एंड द नेम ऑफ दिस ब्रिज इज़ पर्ल ब्रिज. ये जापान में है और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज है. फाइन चिल्ड्रन, लर्न दीज थिंग्स. सो ब्रिज कनेक्ट्स द आइलैंड ऑफ आवाज, जो आवाजी से होंशु को कनेक्ट करता है. राइट. देयर आइलैंड ऑफ आवाजी से होंशु को कनेक्ट करता है. एंड मैंने बता दिया, फिर भी बोल रही हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू अगेन. बिफोर द ब्रिज वॉज बिल्ट, द ओनली वे ऑफ commuting was the passenger ferry, which would often experience dangerous storms. Okay. Located near the Sydney Opera House. Sydney Opera House के पास located है ये bridge. The Sydney Harbour Bridge is a steel arch bridge across the Sydney Harbour. The bridge was opened in 1932 and was Sydney's tallest structure until 1967. 1932 में ये ब्रिज ओपन हुआ था, यानी चलना शुरू हुआ था, मतलब स्टार्ट किया गया था इसका यूसेज. एंड सिडनी का टॉलेस्ट स्ट्रक्चर रहा है ये 1967 तक. राइट. एंड इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टील आर्क ब्रिजेस. स्टील आर्क ब्रिजेस में सबसे टॉलेस्ट ब्रिज है वर्ल्ड का, जो कई सारे टॉलेस्ट ब्रिज हैं उनमें से एक है. इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टील आर्क ब्रिजेस, मेजरिंग 134 मीटर फ्रॉम टॉप टू द सी लेवल. ऊपर से सी लेवल तक कितना मीटर्स है? 134 मीटर्स. ब्रिज को हम क्या बोलते हैं? कोथैंगो. इसको ब्रिज को हम कोथैंगो क्यों बोलते हैं? यू हैव टू फाइंड इट आउट. ठीक है. इस ब्रिज को हम कोथैंगर क्यों बोलते हैं? यू हैव टू फाइंड इट आउट. फाइंड आउट वाई. फाइन चिल्ड्रन. आर्क क्या होता है? ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, आर्क बनाना. ऊपर से ऐसे सेमी सर्कल जैसा होता है थोड़ा सा. राइट. सेमी सर्कल से भी थोड़ा ज़्यादा ऊपर एक आर्क, जैसे ये शिप का ऊपर, ये ब्रिज का ऊपर आर्क दिख रहा है ना,
यही आर्क है, इसीलिए इसको आर्क ब्रिज बोलते हैं, ठीक है, फाइन। ये आपको यहाँ पे क्लियर भी किया गया है। फर्स्ट वाला बेटा आपका आर्क ब्रिज है, ये नीचे से इस तरीके से होता है, देखो नीचे, ये नीचे भी गई आपकी लाइन इस ब्रिज में, देखो सपोर्ट के लिए, राइट। सो आर्क ब्रिजेस ऐसे होते हैं। सेकेंड वाला जो है आपका वो कैंटिलीवर ब्रिज है, उसमें लिवर्स से सपोर्ट दिया होता है, ठीक है, इट इज़ कैंटिलीवर ब्रिज। एंड जो थर्ड है वो आपका सस्पेंशन ब्रिज होता है, राइट। ये सस्पेंशन पे, और कई सारे मूवेबल सस्पेंशन ब्रिजेस भी बने हुए हैं, राइट, मूवेबल भी बनते हैं, इमूवेबल भी बनते हैं, राइट। ये सस्पेंशन ब्रिज है। आपकी ड्राइंग कितनी क्लियर दी हुई है, सी, ओके। आई होप the data in the chapter is clear. Now quick quiz. Can you name the bodies of water on which these famous bridges stand? अब ये ब्रिज किस वाटर बॉडी के ऊपर है? हावड़ा ब्रिज। आपकी हावड़ा राजधानी चलती है ना, कहाँ जाती है वो? कलकत्ता जाती है, कोलकाता। सो हावड़ा ब्रिज जो है किस रिवर के ऊपर है? कोलकाता में कौन सी रिवर है? रिवर Hooghly. Okay, you find it out about this river also and Havra Bridge also. Then B, Millau Bridge. Millau Bridge is on River Tan. C, Golden Gate Bridge. Golden Gate Bridge आपका Golden Gate Strait पे बना हुआ है, fine. Second, draw lines to match the pictures with the form of bridges that they are. ये मैंने आपको पहले ही बताया। आपका नंबर 1 इज़ A is arched bridge, B is cantilever bridge and C is suspension bridge. Okay? Children, kindly do the written work on page 55, written work given on page 55 and page 53, and discover the name of the authors, you know, about the authors, जो जिन authors का बच्चे नाम दिया हुआ है इस पेज पे, इनके बारे में डिस्कवर करो, फाइंड आउट, मेक नोट्स अबाउट देम। आई विल डिस्कस ड्यूरिंग द क्लास, आई विल डिस्कस अबाउट दीज ऑथर्स and find out about their creations also, fine, and read about these bridges also and about these rivers and these bridges as well, fine. So kindly do your work. If you have any doubt, any query, you may ask during the class. Okay? Thank you, children. Have a nice day.